Last day we started with a self-help group. Basically this particular self-help group, why we are learning in this particular first chapter itself, it is basically a part of your second chapter. But why I have covered here, because this is if you see the whatever the different thing we have learned in previous session, like if you see we are talked about microfinance, then we talked about different schemes, mixed model, then small business model, correct? So these all shows that it is based on community people, it is for poor people, the people who are coming together with the same objective. The SHG also have a same kind of a belief that we should go come together and mutually we should contribute and we should grow together, correct? So that's why we are learning this SHG here. The some extension part is there that will cover in next coming days, okay? So first, as we discussed, the SHG is nothing but what? It is an income generating activity. It is an income generating activity where everybody is looking for employmenting themselves and everybody is focused. जो भी गांव के रहने वाले लोग हैं, they all are focused for poverty reduction. Basically, that is the main objective behind the starting of a SHG. And here in our India, we have a lots of SHGs who are working all over the India, and maximum SHGs are here in Maharashtra, okay, and even in Kerala there are the many SHGs, okay. So here this SHG is specifically for this purpose only, like they should get an particular development in socio-economic development. As I discussed, socio means what? Society, economics means what? At the level of a money level, and community means what? Samaj, in which particular community they are living. Okay, so they wanted to improve themselves, and that's why they are here. They that ladies or that maybe the gents. Yeah, interesting thing I wanted to tell you here. It is always predicted by the people who are not knowing about more about the SHGs, that people think it is only the ladies can open. No, it can be opened by the gents also. There is one case study actually. I'm not able to remember the name of a person, but that person has opened a SHG and it is a gents SHG. वो एक SHG जो खुला है वो gents है, मीन्स जेंट्स कम्युनिटी ने बनाया हुआ है. दे ऑल टुगेदर आर वर्किंग ऑन झुनका भाकर केंद्र. So they are starting with that particular kendra, okay. So means it is not like that it is only the task or only the particular type of activity done by the ladies. No, it can be done by the gents also, but the only thing is what, they should have a same kind of a thinking and they should have a same kind of motivation, okay. So that is the only one thing. Then as I discussed earlier, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कारपोरेट्स आल्सो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एसएचजी. Here I have listed some SHGs empowerment done by the ITC. ITC is also one of a big company, Indian Tobacco Company. They have a many programs through that they are empowering the SHGs. Means SHGs are opened by the women only, okay. But these companies are providing them support, means giving and skill support. Like we will be providing you the swing techniques, okay. Means they will be having their own swing training program. They are providing these to that SHG ladies, okay, so they can become independent. Even Hindustan Unilever, they are also having their own computer vans. They are moving around particular villages, and wahan pe they are providing free of cost training to the ladies who are 10th or 11th or 12th standard pass out. Even below that they are providing, if they are looking for getting a job somewhere as a typist, or they should get some kind of a job, okay. So this kind of many things, as I told you about the Amul is one of the biggest example of our India, कि जहाँ पे औरतों को मोटिवेट करने के लिए दे आर कंडक्टिंग एवरी month, they are training thousands of ladies in Amul. NDDC is one of a training center where the many women are coming, even the gents are coming for a dairy, how to open the dairy and that kind of training programs they are conducting. And Amul is having their own training center where they are calling the women from the villages, because as I told you, it's Anand Milk Union Limited, correct?
So there are the many unions around the Gujarat, and they all are connected to Amul. Okay, there are the many around. I think 18 unions are there in Gujarat, and they all are connected to Amul. I'm not sure about 18, approximately 18, because recently I have collected the data of dairy for my program, so I know. So this particular Amul is an a state level actually milk union. So this Amul is having that kind of activity. They are telling the women कि like कैसे आपको गाय और या फिर भैंस को कैसे पालना है, क्या खाना देना है, कैसे दूध का उनका ज्यादा देर तक कितना देर रह सकता है, या फिर कुछ बीमारी हो जाती है तो क्या क्या टाइप का खाना खिलाना है, जब वो दूध देने लगेगी तब उसका खाना कैसे रहेगा. These all kind of trainings are given to the women. Okay, and there are the many success stories about Amul. We have met one lady. वहाँ पे हम वर्तावल गए थे. इट इज आई टोल्ड यू ना दैट टैग वाज देयर. तो वर्तावल में एक लेडी को हम मिले थे. शी वाज टॉकिंग इन गुजराती. देयर वाज वन ट्रांसलेटर. उसने हमें बताया था कि दैट लेडी वाज एक्चुअली शादी होने के बाद गुजरात में आई. शी यूज्ड टू स्टे इन बिहार विद द फैमिली. गुजराती होने की वजह से वहां से शादी होकर गुजरात आई. तो शी वॉज नॉट एक्चुअली, उसको पसंद ही नहीं था गाय भैंस संभालना, बट उसकी सासू माँ को देखा देखी उसको लगा कि नहीं मुझे भी करना चाहिए. बट ये पढ़ी लिखी थी, सासू माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी. तो घर में उसकी सासू माँ ने खुद 5 गाय को संभाला हुआ था. एंड शी इज डूइंग दिस बिजनेस ऑफ गाय जो थी, फिर उसने अभी भैंसे भी संभाल दी. तो टुडे शी इज हैविंग टोटल मोर देन 200 एनिमल्स विथ हर. 200 से ज्यादा गाय भैंसी वो संभालती है आज वो लेडी, और वो अकेली है और उसकी तीनों बहुएं हैं जो आज ये सब कुछ संभालती है. तो शी सेड कि लाइक इट इज अ लाइक अ ग्रैंड कमिंग, लाइक मेरी सासू माँ से मैं सीखी और मुझसे मेरी तीनों बहुएं सीखी है. And this is nothing but about the empowerment. Okay, so this is nothing but about SHG empowerment particular programs are going through the corporate. Means Amul is also one of a corporate, so they are doing this. Tata Group, the same kind of, they are doing many things. They are doing that Seva. I just told you that Seva is again many things they are doing for the ladies. Then Shri Mahila Grow Udyog Limited. So whatever the grow means inside the home, whatever you can do without any other efforts, that kind of programs they are running. Then Coca-Cola again doing the same. And yeah, interesting thing I like to tell you here, why this corporate are doing. Correct, everybody should know about this. Why the corporates are doing this. Corporate, whatever they are doing now, promoting the women, it is falling under the category of CSR activity, corporate social responsibility, and they will be getting a deduction. Okay, and it is an compulsory for them under the Companies Act 2013 that they should spend 2% of their profit on this particular type of activity. So that's why basically this all the corporate which are registered as a listed company or corporate companies, they all are supposed to go for this particular kind of activity. So that's why they are playing this role. Actually, otherwise, nobody is looking for promoting the woman and all, frankly speaking. Okay. Only Amul is the exceptional case for that, because Amul started with the cooperative only. Okay. And Seva also the same story. But if you think about ITC, Hindustan Liver, it is not even our Indian company. Tata, at least it is our own company. Coca-Cola, it's not our own company. Reliance and ICICI, again, it's our own companies. So why they are doing this is the main reason. Okay, so remember this. Now, when we are talking about the self-help group, then we need to understand there are the two type of SHGs basically. Okay, one is a self-help group which is not having a joint responsibility, and one is having a joint liability type of a group. Okay, means both are called as SHG only. Only the terms and conditions are different. Okay, only the terms and conditions are different. Okay, just if you see properly, so you will come to know this underlying strategy means what is a base. On that base basically this particular group is going to be developed. ये एक बेस है जिसके ऊपर ये ग्रुप जो है वो बना है. ओके, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना है इसका ग्रेटर फोकस किस पे है, सेविंग्स होने चाहिए. ज्यादा से ज्यादा लोग जो मार्जिनल लेवल पे काम करने वाले लोग हैं उनके सेविंग्स की जाए. दिस इज द मेन फोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर एसएचजी. ओके, बट जॉइंट लायबिलिटी वालों का क्या है कि हम सेविंग पे फोकस नहीं करते. डेफिनेटली दे विल आल्सो सेव. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे विल आल्सो सेव, बट here their focus is on giving and more loans. Okay, giving and more loans to the needy members who all are the members of their particular group. They should get a loan from my SHG. Okay, the second thing is what,
this particular SHGs will charge a very less nominal interest. So that's why this is the main objective of this particular joint liability group. Then scalability means what? On what scale they are running. SHG is less scalable. Means उनका capacity या फिर what you can say फैलाव कितना हो सकता है. तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो चलते हैं उसका फैलाव बहुत कम हो सकता है. उसके ग्रुप्स जो होंगे वो ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 मेंबर पर ग्रुप हो सकते हैं. बट वही इफ यू सी द जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है. उसकी स्केलेबिलिटी बहुत बड़ी हो सकती है. यू कैन इंक्रीज नंबर ऑफ ग्रुप एड ऑन. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, दिस पर्टिकुलर ग्रुप रिक्वायर्ड मिनिमम 3 people first. So that's why the group making it's very easy. But in SHG minimum is 10. Minimum is 10. So that's why it becomes a less scalable. But here if you talk about the joint liability, it becomes more faster growing kind of the thing. Why? Because it's required first is 3 member. From 3 to it can range to 10. Okay, means suppose take an example here. जैसे कि मैंने और सपोज यहाँ पे 2-4 स्टूडेंट के मैं नाम ले लेती हूँ. चलो तुकाराम एंड गौरी एंड माई सेल्फ, हम तीनों ने जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप चालू कर दिया. ठीक है, तो टू गेट मीन्स दिस इज वन रजिस्टर. ओके, दिस इज वन रजिस्टर. नाउ remaining students like Rajesh, then Suraj, then Priyanka, Nilima, Akshada, they also thought of why not to join their group. So they will form their group and they will join us. Okay, in this way this group will become enlarged. Same is happening with the self help group. Same is happening with the सेल्फ हेल्प ग्रुप. ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है. बट सेल्फ हेल्प ग्रुप एस्टैब्लिश करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 10 लोग, जैसे कि अभी हम टोटल 10 है मिला के होस्ट. ओके, तो हम सब लोगों को मिलके एक ही एसएचजी ओपन कर सकते हैं. अंडरस्टूड द थिंग. एंड दैट्स व्हाई द जॉइंट लायबिलिटी वाला जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा बन सकता है फ्यूचर में. बट सेल्फ हेल्प ग्रुप का कैसा है कि उसकी रिक्वायरमेंट ही ज्यादा है, तो इट टेक टाइम टू डेवलप एंड बिकम अ लार्ज. ओके, सेकेंडली इसका जो एनपीए है, बिकॉज एसएचजी आल्सो प्रोवाइड अ लोन एंड जॉइंट लायबिलिटी आल्सो प्रोवाइड द लोन. करेक्ट, बोथ आर प्रोवाइडिंग द लोन. करेक्ट, बट जैसे कि अभी आपने बैंक में देखा होगा एनपीए होते हैं. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज एनपीए? नॉन परफॉर्मिंग एसेट. When is a non-performing asset? हम कब कहते कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है? When suppose someone has taken the loan and he is suppose for a business or for a property and he is not willing to pay or he is not unable to pay, then that particular business or property is for bank is NPA. Okay, okay, good Rajesh. Any other answer? Priyanka, Nilima, Akshada? Okay, nobody wanted to contribute other than the Rajesh. I think Rajesh is only one student for me. Okay, fine. See, here I just wanted to add on to Rajesh word. See, NPA कब होता है? जब आपका 90 days above. 90 days is the first category of NPA. Then it becomes to 160. Then it becomes 200. Okay, तो ऐसे ब्रैकेट पास ऑन होते हैं. तो एनपीए इसमें ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए होते हैं. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे एनपीए की, वो सिर्फ हम ग्रॉस एनपीए की बात कर रहे हैं, नॉट अ नेट. ओके, तो ग्रॉस एनपीए अलग होते हैं, नेट एनपीए अलग होते हैं. ओके, रिमेंबर दिस. तो यहाँ पे जो एनपीएज है सेल्फ हेल्प ग्रुप के, वो 7 to 8% होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर. ओके, वही जॉइंट लायबिलिटी के अंदर वो 1% के बराबर होते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ड ही आपको बताता है, इट्स अ जॉइंट लायबिलिटी. जॉइंट लायबिलिटी मींस व्हाट? सब ग्रुप को मिलके वो देनी पड़ेगी. सपोज टेक एग्जांपल, एज आई सेड कि स्टार्टिंग में मुझे तुकाराम एंड गौरी, we all three started making our joint group. Okay, तो यहाँ पे सपोज मैंने लोन लिया. ठीक है, मैंने लोन लिया 10,000 का ग्रुप से. ओके, अगर मैं नहीं पे कर रही हूँ तो गौरी एंड तुकाराम विल क्रिएट प्रेशर ऑन मी ना, कि तू पे कर रही तो हमको पे करना पड़ेगा. तो इट इज अ जॉइंट लायबिलिटी. बट वही एसएचजी में क्या होगा कि जैसे कि मैंने बोला हम सब के सब 10 है. करेक्ट, अभी मैंने लोन लिया है
तो मुझे ही पे करना है, आप लोगों को थोड़ी ना देना है, आप रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं, जो भी दिलाना देना है वो मुझे ही देना है, तो आप लोग मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट करोगे ही नहीं ना. So this is the difference, and this is the basic difference. Because of that, maximum people open a joint liability kind of SHG more, because there the particular NPAs are very less. I visited Mysore. Actually, मैं एक टर्निंग पे गई थी. मलयालम में वहाँ पे कोई तो भगवान का नाम है भाई, मुझे अभी याद नहीं है. मुझे 5-6 साल पहले मैं मद्रास गई थी, मीन्स मैसूर, तब मैंने वहाँ पे मैंने विजिट किया था. तो वहाँ पे मैं गई थी, सेम उनका जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप ही था. एंड सरप्राइजिंगली जब हम गए थे, इट इज इवनिंग टाइम आई थिंक, नहीं नहीं मॉर्निंग में गए थे. मॉर्निंग कुछ तो 7 बजे हम लोग पहुंचे थे. दे आर हैविंग देयर कलेक्शन सेंटर्स, तो वो भी एक जॉइंट ग्रुप ही है. और वो जो पर्टिकुलर जॉइंट ग्रुप है ना, उसका नाम कुछ तो भगवान के नाम से, अर्जुन समथिंग नाम से ओपन है. तो वो जो ग्रुप है ना, उसका भगवान के नाम से ग्रुप है. एंड जितने भी ग्रुप कनेक्ट हो रहे हैं उसके कलेक्शन सेंटर्स बने, और उस कलेक्शन सेंटर से वो लोन ले सकते हैं. एंड मैक्सिमम तो लेडीज ही उस जॉइंट ग्रुप में. तो जैसे कि लोग, हमने भी सेम क्वेश्चन पूछा था, व्हाई देयर इज नॉट एनपीए. तो ही सेड कि मैडम, बिलीव, जैसे कि भगवान के नाम का हमारा जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है. तो औरतें स्पेसिफिकली डरती है कि हमने ये, आई थिंक नागार्जुना समथिंग ऐसा नाम है उस पर्टिकुलर, इसका मीन्स इसका नाम है वो, विष्णु जी का नाम है वो कुछ मलयालम में. तो उनके नाम से वो पर्टिकुलर जॉइंट ग्रुप है. तो दे आर अफ्रेड ऑफ इट कि लाइक मैंने ये पैसा रिटर्न नहीं दिया, तो देयर इज मीन्स आई एम मेकिंग सम क्राइम, जैसे हम बोलते हैं हम पाप कर रहे हैं, तो उसका. Are you able to see my screen? Actually, in between my internet connection got disconnected. No, ma'am, screen is not visible. One second. I think now it's visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, thank you. Yeah. So as I discussed with you all, okay, like 1%, I think you have heard now about 1%, 0% NPA. Joint liability group of okay, Suraj is saying yes. Okay, then future landscape means what? Capacity building is there, means it is possible for them to build the capacities for a partners institution. Is the who all are the partners with them? They are building the capacities. But in place of that, if you see the joint liability, it is a very big concept. They are preparing to become a non-banking financial. Okay, they are looking for this, and they prefer the particular joint liability group kind of group, and they are providing
particular services to these people. Okay, like every time the particular group is not having sufficient credit, okay, every time the group members are not having sufficient money, उन सबके पास जितना पैसा चाहिए मीन्स देना है किसी को, उनके मेंबर को उतना होगा ही इसकी गारंटी नहीं, करेक्ट। तो ऐसे सिचुएशन में उनको अगर बाहर से ग्रुप में पैसे लेने हैं, जैसे कि मैंने बोला हम पहले 3 लोग हैं, तीनों ने ग्रुप खोला, स्टार्टिंग में दूसरे आके जमा हो गए, बट मुझे अचानक 5 लाख की जरूरत पड़ी और मैं हमारे जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप में आती हूँ और मैं पैसे मांगती हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ग्रुप में तो है नहीं, तो ये ग्रुप क्या कर सकता है, दे कैन गो फॉर अप्लाइंग एप्लीकेशन जॉइंटली टू द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, पूरे मिलके अप्लाई करेंगे, आई विल बी द फर्स्ट एप्लीकेंट एंड यू विल बी आल्सो टेकिंग शेयरिंग द particular liability. Okay, it is the difference of a self help group and the joint liability group. Okay, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या है ना, आपको जो भी चाहिए वो आपकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग करने वाले जितने भी पार्टनर्स हैं उन्हीं से आप सपोर्ट कर सकते हो, या फिर आपको फिर छोटे छोटे जैसे हमने बैंक देखे हैं कोऑपरेटिव वगैरह, उनसे बैंक उनके थ्रू आप लोन ले सकते हो। बट जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप का कैसा है, दे आर मोर ट्रस्टी means trustful than this particular kind of a self help group. Okay, then last day I told you na that one is particular, I have heard about one village, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बोला था एक, तो वो मानदेशी फाउंडेशन है जो अभी चेतना सिन्हा मैडम चलाती। तो आई हैव सम वीडियोस फॉर यू, just let me stop it, so I will share with you that videos, really great. I have heard her, she we have invited her actually, हमारे एक प्रोग्राम में हमने उनको इनवाइट किया था, तो she shared her views कि हमने कैसे कैसे ये किया है। Let me stop this. Grammarly is your personal writing assistant for clear emails, confident messages, stronger essays, and more. This is not the first which I wanted. How's that? Yeah, this you should listen. I hope you all are understanding Marathi. व्यासपीठवर सर्व डिग्निटरीज, कांबळे साहेब थोडंसं इतिहास सांगते की बँक कशी सुरू झाली आणि नंतर आत्ता काय करतो, आणि त्याचबरोबर मला खूप अभिमान आहे, म्हणजे मी चित्रत आहे मोठ्या संख्येवर, हे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट। उद्योजिका महिला आले मंत्रालयांना सांगणार साहेब की एवढा प्रश्न हा नाही की ऑडियन्स किती आहे, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की उद्योजिका महिला आलेल्या आहेत आज एवढ्या मोठ्या संख्येवर, हे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे महिलांची। आणि मी सगळीकडे म्हणजे ग्रामीण भागापासून की शहरापर्यंत मला असं नेहमी वाटतं की महिला, म्हणजे मी बऱ्याच वेळा असून ग्रामीण भागात फिरत असते त्यावेळी मी बस स्टँडवर, एसटी स्टँडवर खूप पुरुष मंडळी बघते आणि चहा भजी खात पण बसते, असं म्हणजे ते लोक चहा भजी खात असतात। तर मी असं म्हणते की त्यांनी तुम्हाला कसं टाइम मिळतं, आणि मी आमच्या महिलांना विचारते की तुम्हाला कसं टाइम मिळत नाही, म्हणजे ग्रामीण भागात उलट असतं की पुरुषांना खूप टाइम असतं आणि बायकांना अजिबात टाइम नसतो, आणि मग आपण त्यांना विचारलं तर ते सांगतात त्यांना किती 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 काम आहे। तर मला ह्याचा अभिमान वाटतो की आज आपण सगळे इथे जे बसलाय ना, ह्याचा वेळ जो आपण देताय त्याचं नक्कीच आपण कुठलं तरी मोठं काम करणार आहे, आणि त्याबद्दल मी महाराष्ट्र शासनाची आणि वर्ल्ड ट्रेड सेंटरची खूप परत मी बँकेच्या विषयाकडे येते की मला आज अभिमान ह्याच्यासाठी पण वाटतो इथे उभं राहून आपल्याशी शेअर करायला की मी जी बँक स्थापन केली मानदेशी महिला बँक, त्याच्या स्थापक मेंबर जे होत्या ना ते शिकलेल्या नव्हत्या, आणि माझा जन्म मी मुंबईचीच आहे, माझं शिक्षण जन्म मुंबईत झालं। मी चळवळीत असताना मी माझे पती विजय गुरव ज्या ग्रामीण भागात राहतात ते स्वतः शेतकरी आहेत, आम्ही विद्यार्थी असताना आम्ही शाळेत म्हणजे या चळवळीत भेटलो, प्रेम लग्न झालं। मी मुंबईत इकॉनॉमिक्स शिकवत होती, मी मुंबई सोडली आणि गावाकडे गेली आणि सातारा जिल्ह्यातल्या माण तालुक्यात गेली, आणि मी पहिलं चित्र तिथे बघितलं की तो दुष्काळी भाग आमचा, आणि तिथे दुष्काळ असल्यावर महिला जे कामावर जातात तर त्यांना काय काम भेटतं, तर ते रस्ते बांधायचं काम आणि त्याच्यातलं दगड फोडायचं काम भेटतं,
आणि मी त्यावेळी पहिल्यांदा असं म्हणत होते की दगड फोडायचं काम हे कोणाला दिलं जातं? जे जेलमध्ये ज्यांना लाईफ इम्प्रिझनमेंट असेल की जन्मठेपची शिक्षा असते त्यावेळी त्यांना दगड फोडायचं काम दिलं जातं. आणि त्यावेळी आम्ही पहिला मोर्चा सरकारच्या विरोधात असा काढला की आमच्या महिलांना दगड फोडायचं तरी काम दिलं नाही पाहिजे, तिकडं तसं अमानवीयता नाही पाहिजे. पण हे सगळं करताना माझ्याकडे एक महिला आली, तिचं स्टोरी युट्यूबवर आहे, कांताबाई. त्या विळे तयार करतात ज्याला आपण अंग्रेजीमध्ये जे इक्विपमेंट म्हणतो, पण खुरपी विळे जी लागतात त्याला धार द्यायचं ते काम करतात. आणि त्यांनी मला सांगितलं की मला बचत करायची आहे. तर मी म्हणलं बचत करायची आहे तर बँकेत जावा. तर माणमध्ये त्या, हे मी 1994 ची गोष्ट सांगते, त्या बचत करायला सगळ्या बँकेत गेल्या, एकही बँक त्याचं बचत करायला खातं चालू करायच्या मनस्थितीत नाही म्हणल्या. म्हणलं अहो कांताबाई तुम्ही असं रस्त्यावर राहता, तुमच्याकडे पण नाही बचतीला पैसे आहेत का? तरी माझं काय म्हणजे आमच्याकडे उन्हाळ्यात 47 डिग्री सेल्सिअस तापमान असतो आणि त्या म्हणल्या की उन्हाळ्यात माझ्या मुलांना रस्त्यावर फिट येते आणि म्हणून मला बचत करायची आहे आणि सावलीसाठी कागद घ्यायचा आहे आणि त्याच्यासाठी मला बचत करायची आहे. माझ्या मनात असा प्रश्न आला की कांताबाई कुठल्याही सरकारची सबसिडी मागत नाही, कुठलं काही सरकारला सांगतात का नाही सांगत, ती स्वतःचे पैसे बचत करून आपल्या कुटुंबाला सावलीचा विचार करतात. तर हे त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. आणि म्हणून मग मी त्यांना घेऊन सगळ्या बँकेत गेले. ज्यावेळी बँकांनी नाही म्हणलं तर असं ठरवलं की कांताबाई सारख्या महिलांसाठी बँक चालू करा. आणि आम्ही रिझर्व्ह बँकेत प्रपोजल दिलं बँकेचं. पण तसं टाळ्या वाजवल्यासारखं काहीच झालं नाही. म्हणजे सगळ्या महिलांचे अंगठे होते आणि रिझर्व्ह बँकेने प्रपोजल रिजेक्ट केलं, हे सांगून की ज्या महिला संस्थापकीय सभासद ज्या निरक्षर आहेत, अनपढ आहेत, शिकलेल्या नाहीत, त्यांना आम्ही लायसन्स नाही देऊ शकत. मी रडत मुंबईतून बसमध्ये येऊन मसवडला आले आणि महिलांना सांगितलं की आपल्याला लायसन्स भेटलं नाही. महिला म्हणल्या लायसन्स का भेटलं नाही? कारण आम्ही लिहिता वाचता येत नाही आम्हाला ना. मग त्याच्यात तू का रडतेस? आम्ही आजपासून लिहायला वाचायला शिकू. आणि आमचे क्लासेस त्यापासून सुरू झाले. 6 महिन्यानंतर आम्ही परत ऍप्लिकेशन केलं. ही गोष्ट ना मी 1000 वेळा सांगितली असेल तरी दरवेळी मला सांगावं असं वाटतं, कारण त्यांनी मला उत्साह येतो. तर परत आम्ही रिझर्व्ह बँकेत गेलो आणि त्यावेळी माझ्या महिला पण बरोबर होत्या आणि त्यांचे सह्या होत्या आणि मला तरी खात्री नव्हती की आपल्याला लायसन्स भेटेल. आणि ज्यावेळी आम्ही बँकेत गेलो तर माझ्या बरोबर 17 महिला आल्या होत्या. आम्ही अपॉइंटमेंट घेऊन गेलो होतो. सुरुवातीला गोरख्यांनी आम्हाला थांबवलं आमच्या महिलांचे टाकटाक वाजवणारे चपल्या वगैरे बघून. पण मग आम्ही आत गेल्यानंतर महिलांनी, तिथे जे डिरेक्टर होते त्यांना सांगितलं की तुम्ही आम्हाला बँकेचं लायसन्स नकारलं कारण आम्हाला आमचे अंगुठे होते. आणि त्या म्हणल्या आम्हाला लिहिता वाचता येत नाही पण आम्हाला मोजता येतं. आणि त्यांनी वरून काय सांगितलं की तुम्ही आम्हाला कुठल्याही मुद्दल रकमेचं व्याज मोजायला सांगा, आम्ही चुकलो तर लायसन्स देऊ नका, पण तुम्ही तुमच्या ऑफिसरांना पण व्याज मोजायला सांगा आणि बघूया कोण लवकर मोजते. त्यांचं कॅल्क्युलेटर घेऊन टाका आणि मग बघूया की कोण फास्ट मोजतंय ते. I will just repeat this sentence in English that majority of our women were non-literate and they told Reserve Bank officer that tell us to calculate the interest of any principal amount. If we fail, don't issue the license. But tell your officers to do it without calculator and see who can calculate faster. अशा पद्धतीचं आव्हान ज्यावेळी महिलांनी दिलं त्यावेळी आम्हाला बँकेचं लायसन्स मिळालं. आणि मला आज अभिमान वाटतो की ही बँक ज्याला कुठल्याही सरकार, इन्व्हेस्टर कोणाचाच पैसा नाही, महिलांचा सेव्हिंग, महिलांचा कॅपिटल, आणि आज ती बँक आमची 300 कोटीचा भांडवल आणि मला हेही अभिमान वाटतो सांगायला की ह्या ज्या सगळ्या महिला आहेत ना त्यांनी कर्ज 1 शेळी 1 म्हैशी घेऊन कर्ज घेतलेलं आहे. आणि त्यातल्या काय महिला आमच्या अशा उद्योजक झालेल्या आहेत की जे कॉन्फेडरेशन, म्हणजे एका महिलेला आमच्या पंतप्रधानाच्या हस्ते पुरस्कार मिळालेला आहे.
ते पेपर कप आणि पेपर प्लेटचं मशीनचं बिझनेस आहे. एक महिला आहे जी आमची पॅरावेट आहे, वेटनरी सर्व्हिसची कंपनी तिने चालू केलेली आहे. डोरस्टेप वेटनरी सर्व्हिस त्याच्या शेळी, गाय, म्हैशी, कोंबड्यांमध्ये वॅक्सिनेशन वगैरे डोरस्टेप द्यायचा आणि त्या कंपनी तिने चालू केली आहे कांबळे आणि ताई त्या पण दलित समाजाच्या आहेत. गेल्या वर्षी नीती आयोग तर्फे त्यांना पारितोषिक मिळालं. मग ही बँक अशा महिलांना सपोर्ट करते. मी फार वेळ घेणार नाही, पण मला असं हे सांगायचं की ह्या उद्योजक महिलांना सगळ्यात महत्वाची म्हणजे 2 गोष्टी मला आमच्या महिला नेहमी सांगतात की आम्हाला काय पाहिजे, 2 गोष्टी पाहिजे, भांडवल आणि धाडस. धाडस म्हणजे करेज. करेज तुमच्याकडे आहेतच, त्यात काय वादच नाही ना, त्याच्याशिवाय तुम्ही इथे पोचाल कसा. तुम्ही एवढे उद्योग चालू केलेले आहेत तर तो धाडस आणि करेज तुमच्याकडे आहे, पण कॅपिटल ह्याची आम्हाला गरज आहे आणि हे कसं मिळावं. आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये आमची बँक आज जवळजवळ साधारण 1,10,000 महिलांना आम्ही कर्ज दिलंय उद्योजकांसाठी, उद्योग चालू करण्यासाठी. तर आमची इथे नवी मुंबईमध्ये पण ब्रांच आहे मानदेशी महिला बँकेची आणि आम्ही इथे आता म्हणजे आतापर्यंत आम्ही सातारा, पुणे त्या भागात काम करत होतो. आता नवी मुंबईमध्ये पण आमची शाखा आहे. मला काय सांगायचं आहे की कर्ज देताना ना मी खूप शिकले महिलांकडे आणि काय शिकले ते पण सांगते. आपल्या महिलांना तसा पैसा वायफट वापरायला येत नाही, म्हणजे आपण सरोजताईचा सगळा ऐकला अनुभव. तर ज्यावेळी आम्ही बँकेने ज्यावेळी चालू केलं त्यावेळी आम्ही ग्रामीण भागात आठवडे बाजार असतात आणि आठवडे बाजारमध्ये महिला जास्त करून व्यवसाय करतात. तर मी एकदा आठवडे बाजारमध्ये फिरत होते तर आमच्या महिला मानदेशीमध्ये बचत करायच्या पण कर्ज सावकाराकडून घ्यायच्या. आणि मी म्हणलं अहो ताई तुम्ही कसं घेता, ते म्हणले मी सकाळी 100 रुपये घेते आणि संध्याकाळी त्याला 110 रुपये देते आणि 100च्या पटीने जर 1000 घेतले तर 1100 देणार, असं तिने हिशोब सांगितला. मी म्हणलं तुम्ही किती व्याज भरता, तुम्हाला अंदाज आहे का. म्हणलं ताई मला सगळं माहिती आहे. मी म्हणलं तुम्ही आमच्याकडे बचत करता आणि कर्ज तिथे घेतात. ते म्हणल्या हो, कारण तुमच्याकडे कर्ज घ्यायचं असेल तर तुम्ही कागदपत्र सांगणार, बँकेत यायला सांगणार, 2 जामीनदाराला आणायला सांगणार, परत सांगणार हे कागदपत्र पूर्ण नाही माघारी जावा, परत माघारी बोलवणार. असं करून माझे कमीत कमी 8 दिवस तर कामाचे जाणार आणि 2 जामीनदारा बोलवायला त्यांच्या कामाचा पगार मला द्यावा लागेल. हे सगळ्यापेक्षा मला ह्या सावकाराचे पैसे सोपे वाटतात. व्याज जास्त आहे मला माहिती आहे. मी त्या बाईंकडनं हे शिकले की तुम्हाला जर बँकिंग करायचं असेल तर ती सोपी बँकिंग असली पाहिजे आणि तुम्ही जर किचकट करून ठेवलं तर तुमच्याकडे महिला तरी टाइम वेस्ट करायला येणार नाही. मग ज्यांना बुडवायचं आहे ते येणार, त्यांना रोज हरकतच नाही ना ऑफिसला यायचं, कारण परत थोडी द्यायचे पैसे, मग ते नक्की येणार, पण बायका नाही येणार. मग मी हेच म्हणते की ही महिलांकडनं शिकले. मग आम्ही खास एक आठवडे बाजारच्या महिलांसाठी कॅश क्रेडिट प्रॉडक्ट असाच चालू केला. सकाळी तुम्हाला पैसे मिळतील, संध्याकाळी जाताना तुम्ही रिपेमेंट करायचं आणि थोड्या दिवसानंतर आम्ही त्या महिलांना त्यांचं जे जमा नावे आहे और आय वुड से इन्कम अँड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ते त्यांना दाखवलं आणि मग दुसरी जी महिला आहे जी सावकाराकडनं घेते तिचं जमा नावे दाखवलं, आम्ही डायरी केली आणि नंतर यांना लक्षात आलं की आपण जर अशी सोय मिळाली तर आम्ही देतो. मला एवढंच सांगायचं की असा आता आमचा ऍप आहे, अशी डायरी आहे की ज्या सगळ्या महिला ह्या डिजिटल ट्रान्झॅक्शन करतायत. आणि मी जाता जाता एवढंच सांगते की ज्यावेळी आम्ही डिजिटल बँकिंग चालू केलं आणि ई वॉलेट चालू करत होतो त्यावेळी आमच्या महिलांना, आणि आमची डिजिटल स्कूल ऑन व्हील्स पण आहे, तर आमच्या महिलांना सांगत होतो की तुम्ही ई वॉलेट वापरा, आम्ही तुम्हाला पिन नंबर सांगतो. तर आमच्या महिला म्हणाल्या नाही आम्हाला पिन नंबर नको, तुम्ही दुसरं काहीतरी पर्याय काढा. आम्ही म्हणलं हो आम्ही तुम्हाला फायनान्शियल लिटरसी घेणार, शिकवणार पिन नंबर. ते म्हटलं नाही तुम्ही पिन नंबर आम्हाला नकोच आहे, आम्हाला शिकायचं आहे, येत नाही म्हणून नाही पण आम्हाला पिन नंबर नको. मग आम्ही आमच्या पूर्ण सिस्टम मध्ये बायोमेट्रिक अटॅच केला आणि त्यांनी अंगुठ्याने त्यांचं अकाउंट वॉलेट ओपन करू शकतात. ज्यावेळी आम्ही हे केलं ना तर महिलांनी काय सांगावं, ते म्हणले पिन नंबर माझं कोणी चोरून घेणार पण माझा अंगुठा कोणी घेणार का. ह्या एवढ्या हुशार महिलांबरोबर आम्ही बँकिंग करतो
मला अभिमान वाटतो हे सांगायचं. हे सगळे अनुभव आणि जे मी शिकली आहे ती त्यांच्याकडनं. आणि हे शिकल्यानंतर मला एक गोष्ट लक्षात आली की मी इंग्रजीमध्ये सांगते, नेव्हर प्रोव्हाइड पुअर सोल्युशन्स टू पुअर पीपल, दे आर स्मार्ट, राईट, दे आर स्मार्ट. तर आता मी दावोस मध्ये म्हणजे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम मध्ये सध्या को चेअर आहे आणि को चेअर पद स्वीकारताना मी त्यांच्या बरोबर एक अट ठेवली. This is the one video I have, and one more I just wanted to share. भारतीय महिलांपुढे एक वेगळा आदर्श निर्माण केला आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमनेही त्यांना जगातल्या समग्र बदल घडवण्याचं काम त्यांनी केलं. प्रशिक्षण देण्यात आलंय. चेतना सिन्हा यांनी 3 तास बस स्टँडवर थांबले. तर मला असं आठवतं की पहिल्यांदा मला एका गावात जायचं होतं, महिलांची मीटिंग करायची होती, मी फार उत्साहात होती, पण मी 3 तास बस स्टँडवर थांबले, बसच आली नाही. आणि त्या 3 तासात जवळजवळ 40 वेळा मी सांगितलं असेल स्टेशन मास्टरना, अहो बस केव्हा येणार. त्यांनी मला सांगितलं, एवढे लोक तुम्हाला दिसत नाही का बसले, ते बसले, तुम्ही का सारखे येतात. मी माझ्या मनात असं म्हणलं, कारण मला मुंबईच्या लोकल ट्रेनच्या वेळेची सवय लागली आहे ना, म्हणून अशा छोट्या छोट्या गोष्टी असतात. जसं 7-7, 8-8 तास लाईट नसते, ही सगळ्या गावाकडची परिस्थिती असते. तालुक्यातले त्यांना ते Here I have a last. आणि आता ज्या मुंबईच्या महोत्सवला आलेल्या महिला आहेत ते तर कंपन्या काढतात. म्हणजे त्यांचा प्रवास आहे तो मजुरीपासून ते कंपनीचे मालकापर्यंत होण्याचा. आमच्या महिला काय म्हणतात, ते म्हणतात मार्गदर्शनमध्ये आम्हाला काय भेटतं, हिसाब, हुन्नर आणि हिंमत भेटते. हिसाब म्हणजे बँक, हुन्नर म्हणजे आमची बिझनेस स्कूल आणि हिंमत म्हणजे अशा ज्या आमच्या चेंबर ऑफ कॉमर्स असे जे महोत्सव असतात, आमच्या महिला आपलं माल डोक्यावर घेऊन आज आलेले आहेत, जात्यावर दाढी तयार करतात आणि मुंबईकरांना विकतात. हा साध्या सुध्या माणसाचं काम नाहीये. तर तो जो धाडस आहे तो धाडस घेऊन मी आज इथे मानदेशी महोत्सव मध्ये मुंबईत आलेली आहे. आम्ही 10 लाख महिलांना उद्योजक 2022 पर्यंत करायचं हे आमचं मिशन आहे. आणि मला खात्री आहे की आमच्या महिला फक्त उद्योगच नाही उभे करणार, पण उद्योगपती होणार, त्यांचे त्या कारभारी होणार. तर तो आणि अशा महिलांच्या कंपन्या उभ्या राहिल्या तर त्या देशाचं उदाहरण जगाला हा देश शिकवू शकतो की अशा महिला उद्योजक असतील, देश तर उद्योजक होणारच. So this is I wanted to share with you like that lady started with the means that Chetna madam actually basically she started for saving, like the thought came because of that lady that she wanted to save money. Okay, she wanted to save money, and that's why madam thought of like we should do something, correct? And finally now they are having this particular bank. I don't know why not getting shared. I will try one more time. Okay, this is there. Okay, so this we have seen that I told you that I have a Chetna madam's video. Then this is SHGs about actually here if you go in Mandeshi, you'll find there are the many SHGs and they all are doing different kind of business as she mentioned. If you visit, आपने कभी visit किया तो आप देखोगे कि उस गांव में औरतों ने कई सारे छोटे छोटे बिजनेस डाले हुए, जैसे बिंदिया बनाना, देन आपकी ये अगरबत्तियां बनाना, मोमबत्तियां बनाना, देन धूप जो बनती है वो, फिर सॉफ्ट टॉयज बनाना, जैसे कि उन्होंने बोला दाल अलग अलग तरह की हैंडमेड दाल, फिर राइस वो बनाना. देन वहाँ पे जैसे हम अभी तो बहुत रेयर हाउसेस में यूज होता है, बट जैसे बोलते हैं वो पत्थर के जो ये होते हैं
चटनी बनाने के जो ये है खलबत्ता आणि आपण म्हणतो पाटा वरवंटा, दैट काइंड ऑफ थिंग्स ऑल दे आर स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इवन जैसे कि उन्होंने उनकी इसमें दिखा हुआ है वैसे ही उस इसीलिए मैंने आप लोगों को शेयर किया कि इफ यू गो एनी टाइम प्लीज डू विजिट कि एक छोटी सी शुरुआत एक लेडी ने जैसे सोचा कि मुझे सेविंग करना है 10 रुपए से एंड बिकॉज ऑफ दैट चेतना मैडम गॉट मोटिवेटेड एंड शी हैज डन लॉट ऑफ थिंग्स। ये तो उन्होंने डायरेक्ट उनका बैंकिंग तक का ये बताया रास्ता बताया, बट उन्होंने उसी दौरान ये सब स्टार्ट करते हुए फिर उन्होंने एसएचजी किया, फिर एसएचजी से उन्होंने कई सारी औरतों को जोड़ा, कई सारी औरतों ने कई बिजनेस खोले एंड देन द होल विलेज स्टार्टेड इंडिपेंडेंट। आज की डेट में जैसे उन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ पे तो एक अकाल पड़ता है, जैसे बारिश वारिश नहीं होती है तो तकलीफें होती है, वहाँ पे वाटर प्रॉब्लम्स है, बट बिकॉज ऑफ दिस एससीजी नाउ दे आर नॉट facing any financial problem at least. And this Mandeshi, they are started even Pani Vatswa, Pani Jirwa, Pani Vatswa, that particular government scheme they have implemented in their village also now. So they are working on it, like how we will grow, how we'll become our own empowered. So we don't need anybody's help. We don't want even government. We will become our own sustainable. Okay, so this is nothing but all the SHGs. Okay, and as earlier I told you, there is one more last day. Someone was asking me about Bandhan Bank. So I have a one Bandhan Bank video, but I don't know how it will work or not. It is also good, like how the Bandhan Bank came basically. 130. नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा श्रीमान चंद्रशेखर जी घोष के बारे में कुछ थोड़ी चीजें बताने के दौरान, और उससे हम समझेंगे कि किस तरह उन्होंने इतना बड़ा बैंक खड़ा कर दिया। श्रीमान चंद्रशेखर जी घोष त्रिपुरा में रहते थे। त्रिपुरा में अपने पापा के साथ मिठाई की दुकान पे जब उनकी स्कूल खत्म हो जाती थी तब उनके साथ काम करते थे। उनको हायर स्टडीज में थोड़ा बहुत शौक था उस टाइम पे, तो उन्होंने हायर स्टडीज के लिए वो बांग्लादेश चले गए। बांग्लादेश में अपनी स्टेटिस्टिक्स की डिग्री हासिल करने के बाद वो आ गए, फिर से उनको लगा कि कुछ मुझे काम करना है। उन्होंने एक एनजीओ ज्वाइन किया जिसका नाम था BRAC। वो एनजीओ ज्वाइन करने के बाद उसमें लगा उसमें कि वहां की जो महिलाएं थी, वो महिलाओं को जो उनके पास पैसा नहीं था, वो पैसे लेने जाते थे किसी मनी लेंडर के पास। मनी लेंडर उन्हें एक दिन का 5% इंटरेस्ट, मतलब 1% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था। मतलब कि सपोज 500 रुपए मनी लेंडर ने उनको दिए, तो शाम को महिलाओं को उनको 505 रुपए, मतलब कि 1% इंटरेस्ट चार्ज किया जाए। ये इंटरेस्ट टोटल पूरे साल का मिलाना जाए तो 365 डेज का लगभग 700% कंपाउंडेड इंटरेस्ट हो जाता था। मतलब कि सिंपल नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगभग 700% ब्याज महिलाएं देती थी। और आज हम एफडी पे या किस पे इतना इंटरेस्ट 8-10% इंटरेस्ट पाते, तो उस टाइम पे 700% ब्याज, मतलब कि महिलाओं का शोषण हो रहा था इस चीज में। तो ये बात जब चंद्रशेखर जी घोष को पता चली कि इस तरह से तो ये बहुत ही गलत चल रहा है, उन्होंने सोचा क्यों ना मनी लेंडर्स के सिवा मैं ही लोन देना शुरू करूं। उनको सिर्फ एनजीओ की नौकरी छोड़नी पड़ी। साथ ही साथ 2001 में उन्होंने बंधन नाम से एक एनजीओ खोला, जिसके अंदर उनको अपनी एनजीओ की जॉब छोड़नी पड़ी। साथ ही साथ परिवारजनों के ताने सुनने पड़े कि तुम ये क्या नया करना शुरू कर दिए। इसके दौरान उनको बहुत सी मुश्किलें झेलनी पड़ी, पर उन्होंने सारी मुश्किलों को पीछे छोड़कर आज इतना बड़ा बैंक एम्पायर खड़ा किया। शुरुआत में 2001 में जब बंधन नाम का एक एनजीओ खोला गया तो वो छोटी महिलाओं को लोन देते गए। इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही बेहतरीन है। आपको बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं, मैं वीडियो के थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको। 2001 में ये एनजीओ जो छोटे छोटे महिलाओं को लोन देता था, उनसे लोन क्या बोलते हैं रीपे महिलाएं बहुत अच्छी तरह से कर देती थी। सबसे अच्छा मोटिवेशनल चीज श्रीमान चंद्रशेखर जी घोष को तब हुआ जब सिडबी, जो कि एग्रीकल्चर को लोन देती है, उस सिडबी नामक गवर्नमेंट संस्था ने उनको 20 लाख रुपए का लोन दिया कि आप अच्छा काम करो, आप आगे महिलाओं को और लोन दीजिए। जब सिडबी ने उन्हें 20 लाख रुपए का लोन दिया तो उनका मोटिवेशनल पावर और बढ़ चुका और ये बैंक चलता गया। 2010 में एनजीओ को, बंधन नाम के एनजीओ को ट्रांसफर कर दिया एनबीएफसी में, मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। वो जो एनबीएफसी था वो भी बहुत बढ़िया से चलने लगा। जब अब देखेंगे किस तरह 2001 से 2010 की कहानी थी। इसका बिजनेस मॉडल आप ध्यान से समझिएगा। देखेंगे बिजनेस मॉडल
देखिए दोस्तों, बिजनेस मॉडल कुछ इस प्रकार है कि ये जो बैंक है वो किस तरह से काम करती है। ये नीचे से लेकर ऊपर तक काम करती है। ये कॉर्पोरेट लोन्स नहीं देती, ये सिर्फ और सिर्फ छोटे लोन्स देती है। छोटे लोन्स मतलब कि माइक्रो फाइनेंस लोन्स। इसीलिए इस कंपनी को 2010 में नंबर 1 माइक्रो फाइनेंस एंटिटी बन चुकी थी। ये छोटे लोन इस तरह से देती है, 25-30 महिलाओं का नीचे से एक छोटा सा ग्रुप बनाती है। ये ग्रुप को लोन देती है, मतलब कि सपोज 25-30 महिलाएं, सबको थोड़े पैसे दिए। अब कुछ महिलाओं को ऐसा होगा कि मुझे पैसे रिपे नहीं करने, तो एक ग्रुप को लोन रिपे करना पड़ता है। तो उसमें जो 3-4 महिलाएं वो सोसाइटल प्रेशर के कारण, see here I told you na the joint SHGs, correct? I just told you the joint SHG, the same thing he is explaining, that joint SHGs, okay? वो सारा का सारा पैसा अपने रिफंड कर देते, मतलब कि सारा पैसा रिपे कर देती थी। तो एक सोसाइटी का प्रेशर क्रिएट कर दिया, इमेजिनरी सोसाइटी का प्रेशर, जिसके वजह से उनको सारे को लोन रिपे करना ही पड़ता था। तो ये इस तरह से पूरा एक बना दिया था। और इनका मेन बिजनेस था कि छोटी छोटी चीजों को लोन दो, मतलब कि अगर छोटे को लोन दोगे तो वो जल्दी से रिपेमेंट कर देगा। इसमें बहुत सा बड़ा नुकसानदायक बात ये है कि अगर छोटे लोगों को बिजनेस के लिए लोन दोगे, उनका बिजनेस भी छोटा होता है, अगर वो डूब गया तो उनका सारा का सारा लोन एनपीए हो जाएगा। पर एक चीज नोट करना, बंधन बैंक का एनपीए सबसे कम है, सबसे कम बंधन बैंक का एनपीए, इसीलिए बैंक इतनी आगे बढ़ रही है। अब बात करते हैं 2010 में जब एनबीएफसी में उन्होंने ट्रांसफर लिया एनजीओ से, तो उसके बाद 2013 में आरबीआई ने एक बैंक्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकाला, जिसमें से टोटल 25 बैंकों ने फॉर्म भरा था। 25 बैंकों में से 2 बैंक सिलेक्ट हुए। उसमें क्या बोलते हैं, अपने मुकेश भाई ने भी, मोटा भाई ने भी, अगर आपने मोटा भाई की वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो जरूर देख लीजिएगा। मोटा भाई ने भी इस बैंकों में फॉर्म भरा था, साथ ही साथ अदानी ने भी फॉर्म भरा था, साथ ही साथ टाटा ने भी फॉर्म भरा था। तो उसमें से सिर्फ 2 ही बैंक सिलेक्ट हुए, उसमें से एक बैंक बंधन था। तो 2015 में बंधन बैंक को लाइसेंस मिल गया और ये बन गई देश की नंबर 1 माइक्रो फाइनेंस बैंक, जिसने अपना कामकाज शुरू किया 23 अगस्त 2015 को, जिसे 5 साल खत्म हो चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन तरह से 5 साल उन्होंने खत्म किए और आज वो बहुत ही अच्छी तरह से बैंकिंग बिजनेस चला रही है। अब देखते हैं कि किस तरह बंधन बैंक ने सबसे बड़ा एक मेजर एक्विजिशन किया। 2019 में बंधन बैंक ने ग्रुप फाइनेंस को एक्वायर किया। ये क्यों किया? बंधन बैंक का मेन जो बिजनेस था वो सारा ईस्ट इंडिया में था। उनको वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया सभी में एक्वायर करना था। तो ये बिजनेस को फैलाने के लिए उनको या तो सब्सिडरी बनानी पड़ती, या तो एसोसिएट बनाना पड़ता, या तो जॉइंट वेंचर बनाना पड़ता। ये तीनों के तीनों कार्य करने के लिए उनको कोई ना कोई कंपनी चाहिए थी। उसी दौरान एचडीएफसी की एक सब्सिडरी जिसका नाम है ग्रुप फाइनेंस, ये ग्रुप फाइनेंस कंपनी ने अपना जो स्टेक है वो पूरा का पूरा बंधन बैंक को बेच दिया। एचडीएफसी बैंक को ये जो ग्रुप फाइनेंस की जो सब्सिडरी है वो अच्छे प्रीमियम में निकालनी थी, और साथ ही साथ उस समय पे बंधन बैंक को भी कुछ खरीदना था। तो बंधन बैंक ने ग्रुप फाइनेंस को खरीदा। इसी के साथ एचडीएफसी का बंधन बैंक में 15% स्टेक आ गया था। अब देखते हैं दोस्तों ये क्यों किया। ये करने के पीछे का कारण ये है कि बंधन बैंक का ईस्ट इंडिया में था और ग्रुप फाइनेंस का मेजर बिजनेस वेस्ट इंडिया में था। तो बंधन बैंक अभी वेस्ट इंडिया में भी बहुत ही बारीकी से पहुंच चुकी है। आप देखो, क्योंकि वेस्ट इंडिया में बंधन बैंक की आज से 2 साल या 3 साल पहले इतनी ऑफिसेस नहीं थी, इतनी ब्रांच ऑफिसेस नहीं थी। आज वेस्ट इंडिया में बंधन बैंक इस तरह पहुंची, ग्रुप हाउसिंग फाइनेंस का सपोर्ट लेकर आज पूरे वेस्ट इंडिया को भी अपने मुट्ठी में ले लिया है। इसका और एक मेन कारण ढूंढने जाए तो बंधन बैंक ईस्ट इंडिया में सपोज बहुत ही ईस्ट इंडिया में बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तो सपोज ईस्ट इंडिया में कोई नेचुरल कैलामिटीज, ड्रॉट, या तो फिर कोई भी ऐसी कैलामिटी जो ईस्ट इंडिया में आ गई तो पूरा का पूरा उनका एनपीए हो जाएगा, कोई पैसा नहीं चुकाएगा। इसीलिए उनको एक ज्योग्राफिकल एरिया शिफ्ट करना था, इसलिए उन्होंने इसको एक्वायर किया। So this is a story of a Bandhan Bank. Basically, I wanted to share the same joint SHGs. We have just discussed about that, correct? So same I wanted to tell you through the Bandhan Bank, the same they are doing, and that is the reason they are now a biggest one. Now the next topic which we are going to discuss, it is about value chain financing. It is again very interesting part of our microfinance. So first, before we go ahead for the understanding value chain financing, first we need to understand why this particular finance came, and for what purpose and for whom, means the basic
people who are supposed to get benefit out of it, they are actually the farmers. Okay, ये जो वैल्यू चेन जो फाइनेंसिंग आया है उसके लिए कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से आया। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर रखा है, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट, but as I am from Agri Institute, so I know the all things here about agriculture. So basically होता क्या है, farmers जो है वो फार्मिंग करता है, करेक्ट, उसने स्टार्टिंग में कल्टीवेशन करेगा, ये करेगा, बट हार्वेस्ट आने के बाद, हार्वेस्ट एक बार आने के बाद क्या होता है, ही नीड टू सेल, करेक्ट, जैसे उसने गेहूं लगाए थे तो अभी गेहूं आ तो गए घर में, बट उसको वो सेल करने पड़ेंगे ना कहीं, तो सेल कहाँ करेगा, तो वो एपीएमसी में आता है। एपीएमसी मीन्स व्हाट, हमारे जैसे मार्केट यार्ड है पूना में, वैसे हर जगह एपीएमसी बने हुए हैं, वहां पे वो एपीएमसी में वो जाके उसको बेच सकता है। या फिर एपीएमसी का और एक रोल है कि एपीएमसी के थ्रू ही कैन गो फॉर स्टोरिंग इनटू द वेयर हाउसेस। फिर एपीएमसी क्या करता है कि कुछ लोग जैसे फार्मर्स है, अगर वो जैसे फूड ग्रेन लेके आते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, अलग अलग चीजें, तो वो एपीएमसी गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से वो खरीदते हैं, जो भी कोटा है उनका, और वो वेयर हाउसेस में शिफ्ट करते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे फार्मर्स को क्या है ना, अभी आपने फार्म बिल भी सुना होगा कि जो बीच में बहुत बड़ा हल्ला मचा, जिसमें हरियाणा देन पंजाब, दैट एरिया वाज वेरी अग्रेसिव कि वो लगाना नहीं चाहिए, बट फ्रैंकली स्पीकिंग फार्म बिल आएगा तो फार्मर्स को बहुत बेनिफिट होगा। एंड आई बेट ऑन इट, आने वाले 10 सालों में सबसे रिचेस्ट अगर रहेगा तो वो रहेगा फार्मर, अगर वो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है उसमें लिटरेट लोग उतरे, इलिटरेट नहीं। लिटरेट लोग जो है ना, उनका सोचने का तरीका एग्री की तरफ अलग होता है, इलिटरेट लोगों का सोचना अलग होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात प्लानिंग होता है। इलिटरेट लोगों में उतना प्लानिंग नहीं होता, वो जो पुराने जो रीति रिवाज से खेती बाड़ी करते हैं वही चलता है। और यही होता है जब हम नॉर्मल वे से जब प्रोड्यूस करते हैं तो एपीएमसी में देना पड़ता है। एपीएमसी पूरा नहीं खरीदता है। फैक्ट ये है कि अगर मेरा 10 एकड़ का जमीन है, उस 10 एकड़ में 20 एकड़ आया, 20 टन मेरी सपोज गेहूं आ गया, तो पूरा का पूरा 20 टन एपीएमसी नहीं खरीदता, उनके कोटे है, उनका बने हुए रूल्स है, उसके हिसाब से उसमें से वो कुछ टन मेरा माल खरीदेंगे, बचा हुआ मेरे पास ही पड़ा रहेगा। तो फार्मर्स को ये बहुत बड़ा तकलीफ है बेसिकली। तो यहाँ पे वैल्यू चेन का काम आता है। दूसरा वैल्यू चेन का काम, अगर नॉर्मल रूटीन से अगर जाते हैं, ये जो नॉर्मल जो गवर्नमेंट फंक्शनिंग है उसमें क्या होता है, एपीएमसी से माल जो है वो वेयर हाउसेस में आता है। वेयर हाउसेस में वो कहाँ जाएगा, अलग अलग मिल्स में जाएगा। जैसे उन्होंने जैसे चना लाया मार्केट में, तो चना जो है वेयर हाउस में गया, चने की दाल बनाने के लिए वो मिल में जाएगा। जैसे आपने लाए थे, आपकी मूंगफलियां लाई थी, मूंगफलियों के दाने जो है वो कोई और बनाएगा, उसके अगेन अलग चैन लगेगा। तो वेयर हाउसेस में वो दाने से हुए, वहां से वो दाने मिल में गए, वहां से वो ऑयल बनेगा। ओके, तो ऐसे वो दाल जो अगेन वेयर हाउस में स्टोर होगी, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट होके वो फिर से लोगों में बटेगी। तो ये जो नॉर्मल मैं जो बता रही हूँ, ये सर्कल गवर्नमेंट का है, जिसमें क्या होता है, एपीएमसी मार्केट गेहूं दाने फिर आपके राइस जो खरीदते हैं, यही आप लोग ऐसे ही इसी सर्कल से मिलके फिर रेशन कार्ड पे जो मिलता है ना माल, वो ऐसे ही रोटेट होके गवर्नमेंट के थ्रू गरीब लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें फायदा क्या होता है, फार्मर्स का जो भी प्रोड्यूस है थोड़ा बहुत, वो गवर्नमेंट के थ्रू खरीदा जाता है और इससे सपोर्ट होता है। तो वैल्यू चेन का रोल आया कहाँ, वैल्यू चेन का रोल आता है यहाँ पे मिल्स खड़ा करने में। ओके, दूसरा वैल्यू चेन का आपका जो सबसे बड़ा रोल आता है वो है, जो भी आपने एक्स्ट्रा बना हुआ फूड ग्रेन है, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने 20 टन बनाया, ओके, मेरे पास 20 टन गेहूं है, बट ये जो एपीएमसी है गवर्नमेंट है उसमें से 10 टन ही लेने वाली है। ओके, तो 10 टन तो मेरे पास बच गए, तो ये 10 टन में बेचूं किसको, करेक्ट। एंड एज ए फार्मर मैं इसको ज्यादा दिन टिका भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि उसको लगने वाले पेस्टिसाइड से बहुत सारे कीड़े वीड़े लगते हैं, फिर क्वालिटी डिटोरिएट होगी तो कोई माल का कीमत भी नहीं देता है। दिस इज अ फैक्ट एक्चुअली। तो ऐसे सिचुएशंस में यहाँ पे ऐसे कई सारे अलग अलग चीजें हैं जो अलग अलग बातें हो सकती है इस गेहूं को लेके। जैसे आप देख सकते हो कि अभी आटा, जो आप आईटीसी का आटा का जो कंपनी देख रहे हो, तो इट इज वन ऑफ अ वैल्यू चेन। ये जो फार्मर से आने वाला जो गेहूं है वो ये खरीदेंगे, उसको आटे में फ्लोर में कन्वर्ट करेंगे एंड दे विल बी सेलिंग इट टू डायरेक्ट टू द कस्टमर।
जैसे कि अभी आपने देखा होगा ओट्स बनते हैं, करेक्ट? तो दे विल बी बाइंग दिस पर्टिकुलर wheat and all rice and all from the farmers, and they will be converted into the oats and they will be selling to the directly to the customer. Again there उनके वेयर हाउसेस आए, उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू चेन का काम आता है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. वैल्यू चेन मीन्स व्हाट? वैल्यू चेन मीन्स व्हाट? प्रोड्यूसर जिसने भी ये इनपुट बनाया, स्टार्टिंग का बेसिक रॉ मटेरियल बनाया है, उसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके अप टू द मार्केट पहुंचाने के लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं, इन सबको फाइनेंस की जरूरत है. इवन द फार्मर्स, जो फार्मर है, इसको भी फाइनेंस की जरूरत है. तो इसके फाइनेंस के लिए क्या है, हमने देखे अभी इतने सारे कोऑपरेटिव वगैरह वगैरह जो भी है, और आगे और देखेंगे, जो सब इन फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हैं. बट ये जो वैल्यू चेन बीच में जो खड़ी हुई है, जैसे ये फार्मर्स का वेट खरीदेंगे 10 टन का, ये फ्लोर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये ऐसे जो छोटे छोटे यूनिट जो बने हैं, इनके लिए फिर ये वैल्यू चेन है. If you read properly, I don't know how many of you are doing this particular in costing. I don't know whether it costing is in your semester, but हमारे यहाँ पे मैं करवाती हूँ बच्चों से. कभी ख्याल से ना, जो भी आप खरीदते हो उसके ऊपर देखो, अच्छे से देखना कि किसने ये प्रोडक्ट बनाया है. बेसिकली आई डोंट हैव राइट नाउ माय पर्टिकुलर दैट असाइनमेंट विथ मी. एक्सेल है मेरे पास, बट पिक्चर नहीं. आप अगर अच्छे से रैपर देखोगे तो आप देखोगे आईटीसी, टाटा, इवन टाटा नमक जो आप खरीदते हो ना, यू विल सरप्राइज. टाटा का खुद का कोई प्लांट नहीं है टाटा नमक बनाने का, ना ही टाटा टी का खुद का कोई टी फार्म नहीं है. इट्स सरप्राइजिंग. इनके सारे जो है ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, मीन्स ऐसे ही वैल्यू चेन लोग है जो ये बनाते हैं, और उनसे ये टाटा जो है ये खरीदता है, और इनके नाम से हमें मार्केट में बेचा जाता है. ओके, मीन्स मैन्युफैक्चरर अलग है, पैकिंग अलग है, सेलर अलग है. तो ये पूरा एक वैल्यू चेन है. चाय पत्ती काटने वाला अलग, चाय पत्ती को चाय पत्ती में कन्वर्ट करने वाला अलग, उसको पैक करने वाला अलग, उसके ऊपर नाम छपाता है टाटा वाला. अंडरस्टूड? तो दिस इज नथिंग बट द वैल्यू चेन. तो ये जो वैल्यू चेन जो छोटे लोग चला रहे हैं, ये तो ब्रांड हो गया टाटा, और इनको तो पैसे की जरूरत नहीं, बट जो छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे वैल्यू चेन में काम कर रहे हैं ना, इनके लिए फाइनेंस की जरूरत है, और इसके लिए ये वैल्यू चेन फाइनेंसिंग आया. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड कि आप अगर, जैसे मैंने आईटीसी का नाम लिया आपको फ्लोर के बारे में, तो फ्लोर के भी आप उनको देखोगे तो वो खुद कोई फ्लोर बनाते नहीं है, उनके अलग उनके छोटे छोटे बिजनेस है, प्राइवेट लिमिटेड, उनके साथ टाइप किए हुए, उनके पास से ये खरीदते हैं और ये से पैक करते हैं इनके नाम से, आईटीसी फ्लोर. Okay, so this is the actual story of an industry. Okay, so here is a need of a value chain. Here is a need of value chain. अगर आप कुछ भी बनाना चाहते हो, जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एग्जांपल दिया था, एक फार्मर था, उसने उसको स्ट्रॉबेरीज को जैम में कन्वर्ट किया, देन कैंडीज में कन्वर्ट किया. तो जो कन्वर्ट करने का प्रोसीजर था, जो मशीनरीज लगना था, ये था, ये वैल्यू चेन है. Okay, he has converted it and then he shifted it to warehouses, from warehouse to the urban areas, correct? तो it is a value chain. तो इसमें फाइनेंसिंग है, इसमें फाइनेंसिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है. Okay, sorry, it's already 8:05. So I will in next class we will discuss about it in detail. Actually value chain finance है क्या चीज, किसने लाया, क्यों आया, कहाँ से किस किस चीजों को अप्लाई होगा. Okay, today we'll stop here. Okay, I will stop my sharing. I hope you all are enjoying. Why I have shown you the video, basically you might have thinking कि like मैडम क्यों वीडियो दिखा रही है, क्योंकि ये जो सिलेबस है बेसिकली ये पूरी तरह से केस बेस है. ओके, इट इज कंप्लीटली केस बेस. आप जितना अलग अलग चीजों के सुनोगे ना, उतना आप लोग लॉजिक लगा सकोगे कि ये चीज कहाँ से कहाँ अटैच हो रही है. थ्योरी पढ़ के फंडामेंटल सिर्फ आप समझोगे, बट एप्लीकेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट इज वेरी ह्यूज अगर आप समझना चाहो तो. इसलिए मैं आप लोगों को ज्यादा करके जितना भी मुझसे होगा उतना मैं आप लोगों के सामने एग्जाम्पल प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी. ओके, तो टुडे विल स्टॉप हियर and take your food, be safe and be healthy. Thank you from my side. Thank you, ma'am. Thank you.